Hello students, how are you all? Let us start the next chapter of a C++ syllabus, that is inheritance. You have already heard this word. Do you remember where? Yes, when we studied the properties of object-oriented programming languages. I hope you remember that there are 6 properties of object-oriented programming languages, more than 6, but I have explained you only 6. Objects, classes, polymorphism, data abstraction, encapsulation, and inheritance. So now we are going to study inheritance in detail. Inheritance का मतलब क्या होता है? Inheritance का मतलब होता है किसी से inherit करना. Like the child inherits some properties of his parents. और child के पास अपनी भी properties होती हैं, ठीक है? कुछ उसको उसके parents से मिल जाती हैं. So that is the term inheritance in English. पर C++ के टर्म्स में इनहेरिटेंस का फिर क्या मतलब हुआ? In C++, inheritance means that we are creating a class which is inheriting all the properties of another class. Plus, the class which we are creating has its own properties also. So, let us study inheritance in detail. Inheritance is a process by which one class inherits the properties of another class. हमने एक क्लास बनाई, सेव कर ली, उसको यूज किया, उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है? कुछ देर बाद हमने एक न्यू क्लास बनानी है जिसमें जो क्लास हमने पहले बनाई थी ना, उसकी प्रॉपर्टीज भी सारी होंगी प्लस अपनी भी होंगी. सो क्या जो हमने नई क्लास बनानी है उसको हम दोबारा कोड करें? क्या उसमें दोबारा कोडिंग लिखें? नो, द सोल्यूशन इज कि हम अपनी क्लास में जो प्रॉपर्टीज पहली क्लास वाली सेम है उनको इनहेरिट करवा लें, प्लस जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है उनको कोडिंग कर दें. सो इससे क्या होता है, एक तो हमारी कोडिंग में टाइम जो स्पेंड करना होता है वो सेव हो जाता है, हमारे एफर्ट्स सेव हो जाते हैं, कोड रीयूजेबल हो जाता है, एंड मैनी अदर बेनिफिट्स. सो दिस इज व्हाट इनहेरिटेंस इज. बाकी जब मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी तब इनहेरिटेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी. So, by properties we mean that data members and member functions of a class. So, मैंने कहा कि एक क्लास हमने बनाई, उसने दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर ली. तो प्रॉपर्टीज का क्या मतलब? प्रॉपर्टीज मीन्स द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस ऑफ दैट क्लास. द क्लास विच इनहेरिट्स द मेंबर्स ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्लास, या सब क्लास भी कह देते हैं, या चाइल्ड क्लास. जो हम क्लास बना रहे हैं, जो दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है, दैट क्लास इज कॉल्ड ड्राइव क्लास, और वी कॉल इट सब क्लास, और वी कैन से इट एज चाइल्ड क्लास. एंड द क्लास हुज मेंबर्स आर इनहेरिटेड इज कॉल्ड बेस क्लास, सुपर क्लास और पेरेंट क्लास. एंड जहां से प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहे हैं दैट इज नोन एज पेरेंट क्लास और बेस क्लास और सुपर क्लास. सो पेयर्स ऐसे बने हुए हैं. अगर हम ड्राइव्ड वर्ड यूज करें then we use base for its parent class. Base class, drive class. Super class, sub class. Parent class, child class. हम कोई भी set use कर सकते हैं, कोई भी terms use कर सकते हैं inheritance की classes को refer करने के लिए. I'll refer the classes with the term base class for the parent class and drive class for the child class. ठीक है? Now see the diagram. We have created a class A. ठीक है? And that class is driving another class B. It means B has all the properties of class A. By properties we means data members and member functions of class A. Plus B has its own data members and member functions. So A is a parent class or super class or base class, and B is a drive class, subclass or child class. Clear? B is being derived from A, or we can say A drives B. Fine? In this block diagram, class A is a base class, superclass or parent class. Class B is a drive class, subclass or child class. Class B inherits all the properties of class A plus has its own properties also. Fine? Now, what are the advantages of inheritance? Why are we doing inheritance? So, inheritance has many advantages. फर्स्ट एडवांटेज इज सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी, कि हमने एक सॉफ्टवेयर पहले बना लिया, यूज हो रहा है सॉफ्टवेयर, टेस्ट हो गया, सब कुछ, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, सॉफ्टवेयर इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड. हम एक न्यू सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें हमें पता है कि उस सॉफ्टवेयर के भी सारे फीचर्स हमें ऐड करने हैं, पर प्लस एडिशनल भी करने हैं.
आपको पता है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके अलग अलग वर्जन आते हैं. आप गेम्स खेलते हो, यू प्ले द गेम्स, तो गेम्स के अलग अलग वर्जन आते हैं. आफ्टर सम टाइम एक नया वर्जन निकलता है. तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि जो नया वर्जन निकला उसकी कोडिंग स्क्रैच से शुरू से की होगी. नो, व्हाट दे डू, पुराने वर्जन की सारी कोडिंग को इनहेरिट कर देते हैं, प्लस उसमें एडिशनल कोडिंग ऐड कर देते हैं. सो इसलिए वी से दैट सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी is the advantage of inheritance. So when some code is to be implemented, and if that code is already present in some other class, then that code need not to be rewritten. We can use that code using inheritance. Next advantage is increased reliability. The code that is reused is tested previously and is mostly free of bugs. Thus inheritance increases reliability. मैंने पहले से क्लास बनी हुई है, उसको इनहेरिट करवाना है अपनी क्लास में. सो इतना मुझे गारंटी होगा कि वो क्लास फ्री ऑफ बग्स है, फ्री ऑफ एरर्स है. सो जो रिलायबिलिटी है दैट इज इंक्रीज्ड विद इनहेरिटेंस, क्योंकि हम जिस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं वो क्लास पहले से बनी हुई है एंड दैट इज प्रॉपरली टेस्टेड ऑल्सो. नेक्स्ट इज कोड शेयरिंग. द कोड डेवलप्ड बाय वन यूजर कैन बी रीयूज्ड बाय अनदर यूजर. एक यूजर ने कोड बनाया, उसको दूसरा यूजर यूज कर रहा है, सो कोड शेयरिंग इज ऑल्सो देयर. इंफॉर्मेशन हाइडिंग. द प्रोग्रामर हु reUses the class by inheritance does not need to know the details of that class. जैसे एक प्रोग्रामर ने क्लास बनाई, ठीक है, अब दूसरा प्रोग्रामर उस क्लास को इनहेरिट करना चाहता है, तो पहली क्लास की जो डिटेल्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं, मेंबर फंक्शंस हैं, वो क्लास में पड़े हैं, वो हिडन है. हमने जस्ट क्लास को इनहेरिट कर देना है, उसके डिटेल्स नए यूजर को नहीं पता चलेंगे. सो इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज ऑल्सो देयर. आई रिपीट, द प्रोग्रामर हु रीयूजेस द क्लास बाय इनहेरिटेंस does not need to know the details of that class. Thus, the details of the information are hidden from the user who reuses it. Saves time and efforts. Inheritance saves user time and effort because the user can directly reuse the existing code without the need of rewriting that code once again. So, जितने एडवांटेजेस है ना वो एक ही रीजन पर बेस्ड हैं कि इनहेरिटेंस में हम डायरेक्ट कोड को रीयूज कर लेते हैं. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस. एंड ये डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा हल्का सा कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है. सी, सो द एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी शोन यूजिंग द फॉलोइंग डायग्राम. दिस इज अ क्लास ए. ये ए क्लास है, ठीक है. ए क्लास के पास 3 फीचर्स हैं, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3. एंड अगेन बाय फीचर वी मीन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है. सो क्लास ए के पास 3 फीचर्स हैं. क्लास बी ड्राइव हो रही है फ्रॉम क्लास ए. इट मीन्स क्लास ए के सारे फीचर्स क्लास बी में आ जाएंगे. सो कौन से फीचर्स आ गए क्लास ए से क्लास बी में? फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, ये 3 तो इनहेरिट हो गए, प्लस क्लास बी के पास अपने फीचर्स भी हैं. सो इन फीचर्स को डायरेक्टली इनहेरिट कर दिया, इनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी यहां पर, ठीक है. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस. और जो फीचर्स इनहेरिट हो रहे हैं उनको मैंने डॉटेड से शो किया, शोज इनहेरिटेड फीचर्स ऑफ अ क्लास. और जो सॉलिड लाइन है दैट शोज द ओन फीचर्स ऑफ अ क्लास. जैसे ये क्लास के अपने फीचर्स हैं, इस क्लास के ये दोनों अपने फीचर्स हैं, और ये ऊपर से इनहेरिट हुए हैं डॉटेड लाइंस वाले. आई होप थोड़ा सा आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. बेटा अभी मैं सिर्फ थ्योरी करवा रही हूं आपको, ठीक है. ये सब हो जाएगी थ्योरी पोर्शन, देन वील स्टार्ट द प्रोग्राम्स, ठीक है. और प्रोग्राम्स जब होंगे तब आपको कंसेप्ट का और क्लैरिटी हो जाएगी. नाउ द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस इज ऑफ 5 टाइप्स इन C++. नंबर 1, सिंगल इनहेरिटेंस. अगर एक बेस क्लास एक ड्राइव क्लास को ड्राइव कर रही है तो उस तरह की इनहेरिटेंस को कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस. पहले मैं आपको सारी इनहेरिटेंसेस को ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं थ्योरी रीड करती हूँ. सो सिंगल इनहेरिटेंस कब कहते हैं? व्हेन वन बेस क्लास इज ड्राइविंग वन ड्राइव क्लास. बट इफ multiple base classes they combine and drive one drive class, then that is called multiple inheritance. It means if we have more than one base classes but we have only one drive class,
So A, B, C, so until n classes, they are driving class X. It means X has its own features plus the features of class A plus the features of class B plus the features of class C, so until plus the features of class N. So X के पास ऊपर वाली सारी classes के features भी आ जाएंगे plus अपने भी हैं. And this type of inheritance is called multiple inheritance because base classes are multiple. And अगर इससे opposite हो क्या कि एक बेस क्लास बहुत सारी क्लासेस को ड्राइव कर रही है, देन दैट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस. सो ए बी सी सो until n, these all classes are being derived from class X. It means A class has its own features plus the features of class X due to inheritance. Similarly, B class has its own features plus the features of class X. Similarly, N class has its own features plus the features of class X, which it drives due to inheritance. Fine. And अगर इस तरह हो कि one base class is driving a class and that class becomes a base and drives another class, then that type of inheritance is called multi-level inheritance. अब multi-level inheritance की कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी levels तक inheritance होती जाए. Means A is driving B, B is driving C, C is driving D, D is driving E. So there is no limit कि कहाँ तक inheritance हो सकती है. So what happens? A ने B को drive किया. So B class has its own features, but plus it gets features of class A also due to inheritance. And when C is being derived from class B, so C has its own features plus the features of class B. और B में A के भी थे. So it means C में indirectly A के भी आ गए through B. So this is multi-level inheritance. And सारे चारों inheritance का जो combination है, that is the last type of inheritance, that is hybrid inheritance. देखो hybrid inheritance में अगर देखा जाए तो single inheritance भी है. This is single, this is single, this is single, this is single, this is single inheritance, this is single inheritance. Multi-level inheritance भी है. See, this is a multi-level inheritance. This is also multi-level inheritance. This is also multi-level inheritance. Hierarchical inheritance भी है. One base class is driving more than one derived classes. Multiple inheritance भी है. More than one base classes are driving one derived class. So when we have more than one type of inheritance, not necessarily कि सारी तरह की होनी चाहिए, चारों तरह की 2 types या 3 types की combination हो, then that type of inheritance is called hybrid inheritance. So I hope हल्का सा आपको क्लियर हो गया होगा कि inheritance कितने types की होती है. Now let us study the theory portion of these 5 types of inheritance. First of all is single. If one base class drives one derived class, one base class, one derived class, then the inheritance is said to be of type single inheritance. Now in the diagram, A is a base class, B is a derived class. Here class A is a base class and B is a derived class. B has its own features or properties plus the properties inherited from class A also. Clear? Next is multiple inheritance. If more than one base classes drive only one derived class, more than one base classes drive only one derived class, then the inheritance is said to be of type multiple inheritance. Here, class A, B and so on till N are all base classes and class X is a derived class. Class X has its own properties plus the properties of its base classes A, B, C, so on till N. So class X के पास इतनी सारी properties आ जाएंगी. Fine. Next is hierarchical inheritance. If one base class drives more than one derived classes, then that inheritance is said to be of type hierarchical. Class X is a base class and classes A, B, so on till N are derived classes. Here all the derived classes have their own properties plus the properties of base class X. A का B से कोई लेना देना नहीं है, B का C से कोई लेना देना नहीं है. They are all independent. But relationship क्या है? They all are derived from class X. Fine. So सबके पास अपने अपने features होंगे plus X के भी होंगे. Fourth type of inheritance is multi-level inheritance. If one derived class further drives another class, one derived class further drives another class, then the inheritance is said to be of type multi-level. Here class A is a base class of class B. A B का base है.
Thus, a class B has its own properties plus the properties of class A, which it had inherited. So B के पास अपनी properties भी हैं, plus it gets the properties of class A also. Properties or features means data members and member functions. Then class B then act as a base class and further drives a class C. B जो drive थी अभी, अब वो base बन गई और उसने further एक class को drive कर दिया. Thus, class C has its own properties plus the properties of class B plus the properties of class A indirectly through class B. तो C के पास B की सारी properties आ जाएंगी और B के पास A की थी. It means C के पास A की भी indirectly आ गई. So this is multi-level inheritance. And last type of inheritance is hybrid inheritance, which is a combination of all the inheritances. If a program has more than one types of inheritance, then the inheritance is said to be of type hybrid. In other words, hybrid inheritance is the combination of more than one types of inheritance. That is the combination of single, multiple, hierarchical and multi-level inheritances. And diagram मैंने आपको explain कर दी थी, block diagram hybrid inheritance की. So these are the 5 types of inheritance. बेटा very important. Papers में question आता ही आता है. What is inheritance? Explain different types of inheritance with programs. So programs हम अभी end में करते हैं इस chapter के. Fine? The next topic of inheritance is assess specifiers. अब ध्यान से सुनना है आपने कि assess specifiers क्या होते हैं. In C++, there are 3 types of assess specifiers, namely private, public and protected. आपने जब मैंने आपको C++ का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर करवाया था, उसमें मैंने आपको प्रोग्राम में बताया था कि C++ में जो प्रोग्राम है या क्लास है, उसमें 2 सेक्शंस होते हैं. एक होता है पब्लिक सेक्शन, एक होता है प्राइवेट सेक्शन. हम दोनों सेक्शंस में डेटा मेंबर्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मेंबर फंक्शंस भी डिक्लेयर कर सकते हैं. बट generally, mostly, what we do, we declare all the data members in the private section. Why? Because we want to keep the data private. We want to implement encapsulation. We want to implement data abstraction. We want to implement data hiding in C++. So what we do, we declare all the data members, variables in private section. क्योंकि आपको पता है जौन सी चीज प्राइवेट सेक्शन में होगी उसको कोई बाहर का फंक्शन असेस नहीं कर पाएगा. सो वो चीज हिडन हो जाएगी, सेफ हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी. टू मेंटेन द सिक्योरिटी वी डू दिस कि हम डेटा मेंबर्स को मोस्टली प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं. लेकिन हम मेंबर फंक्शंस को भी प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर कर सकते हैं. ये किसी किसी को पता होता है. सब यही सोचते हैं कि प्राइवेट सेक्शन में सिर्फ डेटा मेंबर्स डिक्लेयर होते हैं. नो, वी कैन डिक्लेयर मेंबर फंक्शंस आल्सो इन प्राइवेट सेक्शन, बट उसका कोई यूज नहीं होता. अगर हमने मेंबर फंक्शंस को हाइड कर दिया आउटसाइड वर्ल्ड से, तो मेंबर फंक्शन को कॉल कौन करेगा? तो मेंबर फंक्शन कभी यूज ही नहीं होगा. सो हम करते क्या है, हम डेटा मेंबर को प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं और मेंबर फंक्शंस जितने भी हैं उन सबको पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं. पब्लिक सेक्शन में हम डेटा मेंबर्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट हम नहीं करते क्योंकि हमें डेटा को हाइड करना है आउटसाइड वर्ल्ड से. आई होप इट इज क्लियर. सो द कंक्लूजन इज कि हम पब्लिक प्राइवेट सेक्शन में दोनों डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं. बट जनरली व्हाट वी डू, वी डिक्लेयर ऑल द डेटा मेंबर्स इन द प्राइवेट सेक्शन टू मेंटेन सिक्योरिटी एंड वी डिक्लेयर ऑल द मेंबर फंक्शंस इन द पब्लिक सेक्शन सो दैट दे कैन बी कॉल्ड बाय अनदर फंक्शन आउटसाइड द क्लास. ठीक है, इतना क्लियर. अब इनहेरिटेंस के चैप्टर में एक नया असेस स्पेसिफायर इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड. अब ध्यान से सुनो. इट मीन्स क्लास में ना 3 सेक्शंस होंगे. एक सेक्शन होगा प्राइवेट. हम कैसे लिखेंगे? प्राइवेट डाल के कॉलन डाल देंगे और उसमें डेटा मेंबर्स डिक्लेयर कर देंगे. एक सेक्शन होगा पब्लिक. हम पब्लिक स्मॉल लेटर्स में लिख के कॉलन लगा देंगे और उसमें सारे डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर कर देंगे. और थर्ड सेक्शन होगा प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड स्मॉल लेटर्स में लिख के आगे कॉलन डाल देंगे. अब ये हैं असेस स्पेसिफायर्स. अब इन असेस स्पेसिफायर्स का क्या मीनिंग है, इनका क्या काम है, वो हमने इस टॉपिक में पढ़ना है. सो इन C++ there are 3 types of assess specifiers, namely private, public and protected. Assess specifiers specify the accessibility of data members and member functions of a class in different locations of a program. क्या मतलब? They specify the accessibility. जैसे कि प्राइवेट जो असेस स्पेसिफायर है वो क्या स्पेसिफाई करता है
कि प्राइवेट के अंदर जो चीज़ें डिक्लेयर की हैं वो कहीं असेस नहीं होंगी क्लास के अलावा। पब्लिक एसेस स्पेसिफायर क्या स्पेसिफाई करता है? वो ये स्पेसिफाई करता है, कौन सी एसेसिबिलिटी स्पेसिफाई करता है कि जो चीज़ें पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर होंगी वो कहीं भी यूज हो सकती हैं। So assess specify the accessibility of data members and member functions of a class in different locations of a program, कि कौन सी चीज प्रोग्राम के डिफरेंट लोकेशंस में असेस हो सकती है और कौन सी चीज नहीं हो सकती। सो अब हमने तीनों असेस स्पेसिफायर्स को डिटेल में स्टडी करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्राइवेट असेस स्पेसिफायर, और आपको मैंने बता दिया है कि कुछ भी प्राइवेट सेक्शन में हम डिक्लेयर करते हैं वो सिर्फ क्लास के अंदर यूज होगा, अपनी क्लास के अंदर ही, और कहीं यूज नहीं होगा। So any data member or member function defined inside the private section of a class can be assessed only within a class in which they are declared. जिस क्लास में प्राइवेट सेक्शन है ना, और हमने प्राइवेट सेक्शन में वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, मैंने इंट रोल नंबर कैर नेम डिक्लेयर किया प्राइवेट सेक्शन में, तो जो ये वेरिएबल्स हो गए ना, रोल नंबर एंड नेम, वो सिर्फ क्लास के अंदर ही असेस हो पाएंगे, क्लास के अंदर ही यूज हो पाएंगे। जिस क्लास में प्राइवेट सेक्शन है उस क्लास के अंदर, क्लास के बाहर नहीं उनको कोई यूज कर पाएगा। सो दे कैन बी असेस्ड ओनली विद इन अ क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। दे आर नीदर असेस्ड इन एनी आउटसाइड फंक्शन नॉर इन एनी ड्राइव क्लास। सो प्राइवेट सेक्शन में जो चीजें होती है ना वो इनहेरिट भी नहीं होती। दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू। मैंने आपको कहा था ना अभी ए के सारे फीचर्स बी में आ गए, अब मैं इसको और स्पेसिफाई करती हूँ। ए के सिर्फ पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड फीचर्स बी में आए, प्राइवेट वाले नहीं आए। प्राइवेट वाले फीचर्स सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज हो सकते हैं, ना कोई बाहर का फंक्शन उनको यूज कर सकता है, बाहर का फंक्शन फॉर एग्जांपल मेन फंक्शन, और ना ही कोई ड्राइव क्लास प्राइवेट वाले फीचर्स को यूज कर सकती है। क्लियर? तो अब मैं आपको टेबल भी करवाती हूँ साथ में। जैसे ये टेबल है, मैंने ये तीनों स्पेसिफायर्स को टेबुलर फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है। सो इफ वी हैव प्राइवेट असेस स्पेसिफायर, जो प्राइवेट असेस स्पेसिफायर है, यानी प्राइवेट सेक्शन के अंदर जो भी चीजें डिक्लेयर करेंगे वो उस अपनी क्लास में तो असेस होंगी, लेकिन ड्राइव क्लास में भी असेस नहीं होंगी, आउटसाइड फंक्शन में भी असेस नहीं होंगी। असेस का मतलब समझते हो ना, हम यूज नहीं कर पाएंगे। मेन फंक्शन प्राइवेट वाली फीचर्स को यूज नहीं कर सकता, आउटसाइड फंक्शन है। जो ड्राइव क्लास है, लाइक बी क्लास है, वो ए क्लास के, अपनी बेस क्लास के प्राइवेट सेक्शन वाले फीचर्स को इनहेरिट नहीं कर पाती, सिर्फ पब्लिक और प्रोटेक्टेड के फीचर्स इनहेरिट होते हैं। नेक्स्ट असेस स्पेसिफायर इज पब्लिक असेस स्पेसिफायर, और पब्लिक का मतलब सब कुछ पब्लिकली डिक्लेयर्ड है। एनी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द पब्लिक सेक्शन ऑफ अ क्लास कैन बी असेस्ड एनीवेयर इन द होल प्रोग्राम। दैट इज दे कैन बी असेस्ड विद इन अ क्लास, outside the class and in drive classes also. So जो चीजें हम पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं उनको हम आउटसाइड फंक्शन से भी असेस करवा सकते हैं, लाइक मेन। लाइक आपको याद होगा हमने प्रोग्राम किए थे तो हमने पब्लिक सेक्शन में 2 मेंबर फंक्शंस बनाए थे, गेट डेटा, शो डेटा, और उन मेंबर फंक्शंस को हमने मेन प्रोग्राम में कॉल करवाया था। इसका मतलब मेन में वो असेस हो सकते हैं और ड्राइव क्लासेस में भी असेस हो सकते हैं जो भी पब्लिक में फीचर्स पड़े होंगे। सो ये देखो टेबल, पब्लिक के फीचर्स दे कैन बी असेस्ड इन ओन क्लास एज वेल एज दे कैन बी असेस्ड और यूज्ड इन ड्राइव क्लासेस एज वेल एज दे कैन बी असेस्ड इन आउटसाइड फंक्शंस लाइक मेन आल्सो। एंड अब फिर प्रोटेक्टेड की जरूरत क्यों पड़ी? प्रोटेक्टेड असेस स्पेसिफायर इनहेरिटेंस के चैप्टर में क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? द रीजन इज जो प्राइवेट वाले फीचर्स हैं वो ड्राइव क्लास में असेस नहीं होते, आउटसाइड फंक्शन में भी असेस नहीं होते, पब्लिक वाले हर जगह असेस हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कुछ फीचर्स ऐसे हों जो ड्राइव क्लास में नजर आए बट उसके अलावा कहीं और बाहर ना नजर आए, क्योंकि ड्राइव क्लास तो बेस क्लास की अपनी है ना, तो कुछ फीचर्स ड्राइव क्लास में नजर आए, असेस हों, लेकिन आउटसाइड फंक्शन जिसका उस क्लास से कोई लेना देना नहीं है वहां पे असेस ना हो। सो फॉर दैट वी इंट्रोड्यूस द प्रोटेक्टेड सेक्शन। सो कोई भी डेटा मेंबर, मैं आपको इसका डायग्राम से भी थोड़ा सा करवाऊंगी, थोड़ा सा और इसको डिटेल में करवाऊंगी। सो कोई भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन अगर हम प्रोटेक्टेड सेक्शन में डिक्लेयर करें ना, तो वो क्लास के अंदर तो यूज होगा ही होगा, अपनी क्लास के अंदर जिस क्लास में सेक्शन पड़ा हुआ है प्रोटेक्टेड। ड्राइव क्लासेस में भी वो फीचर्स इनहेरिट होंगे, लेकिन किसी और फंक्शन में, आउटसाइड फंक्शन में लाइक मेन, जो इन दोनों क्लासेस के बाहर है, बेस क्लास और ड्राइव क्लास के बाहर कोई फंक्शन है, वहां नहीं असेस होंगे। सो आई होप इट इज क्लियर।
So any data member or member functions defined inside protected section of a class can be accessed within a class and also in the derived classes of that class, but they cannot be accessed in the outside function, that is the function outside the class. वहाँ access नहीं होंगे. So देखो तीनों का अलग अलग accessibility है. So there are 3 access specifiers. I hope it is clear. Now next is syntax for defining a derived class. अब तक हमने थियोरेटिकली पढ़ लिया कि बेस क्लास होती है, ड्राइव क्लास होती है. अब कोडिंग कैसे करनी है ड्राइव क्लास की, C++ में ड्राइव क्लास को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, बनाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं कोडिंग में. सो द जनरल सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग अ ड्राइव क्लास इज, करना कैसे है. फॉर दैट लेट अस सपोज कि जो बेस क्लास है उसका नेम है A और जो ड्राइव क्लास है उसका नेम है B. तो ड्राइव क्लास की कोडिंग कैसे करनी है. बेस क्लास की कोडिंग तो सिंपल है, जैसे हम एक नॉर्मल क्लास की कोडिंग करते हैं. क्लास का नेम, देन कर्ली ब्रैकेट, प्राइवेट सेक्शन में हमने डेटा मेंबर्स कर दिए, पब्लिक सेक्शन में मेंबर फंक्शंस कर दिए, प्रोटेक्टेड सेक्शन भी बना लिया, उसमें वो चीज़ें डाल दी जो हम चाहते हैं ड्राइव में जाएं और बाहर ना नजर आए. तो हम मेंबर फंक्शंस, डेटा मेंबर्स कुछ भी प्रोटेक्टेड सेक्शन में स्पेसिफाई कर सकते हैं. तो बेस क्लास बनाने का तो नॉर्मल वे है, जैसे हम एक नॉर्मल क्लास बनाते हैं. लेकिन ड्राइव क्लास बनाने का सिंटेक्स हल्का सा डिफरेंट है. दैट इज, हमने ड्राइव क्लास कैसे बनानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वील राइट द कीवर्ड क्लास, स्मॉल लेटर्स में क्लास लिख दिया, फिर ड्राइव क्लास का नेम लिख दिया. जैसे मैंने ड्राइव क्लास का नेम रखा B, तो व्हाट विल आई राइट क्लास B. फिर कॉलन डालना है. कॉलन के बाद ना विजिबिलिटी मोड होता है, वो नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन करना है. विजिबिलिटी मोड भी बेटा 3 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट. लेकिन उनका काम असेस स्पेसिफायर्स से डिफरेंट होता है. असेस स्पेसिफायर्स भी प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड विजिबिलिटी मोड्स आर आल्सो प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, बट मीनिंग्स अलग अलग हैं. वो हम करेंगे, विजिबिलिटी मोड अभी करेंगे. उसके बाद हम बेस क्लास का नेम लिख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने विजिबिलिटी मोड पब्लिक रखा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने आपको बताना है कि होते क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर विजिबिलिटी मोड पब्लिक है, ड्राइव क्लास का नेम B है, बेस क्लास का नेम A है, तो मेरा इस सिंटेक्स क्या बनेगा, क्लास का हेडर क्या बनेगा, क्लास B कॉलन पब्लिक A. सिंपल. आई रिपीट, क्लास, ड्राइव क्लास का नेम इज B कॉलन विजिबिलिटी मोड इज पब्लिक, बेस क्लास का नेम इज A. एंड उसके बाद जो क्लास की नॉर्मल कोडिंग होती है वो कोडिंग हम करेंगे. कर्ली ब्रैकेट्स लगा के प्राइवेट सेक्शन बनाएंगे, पब्लिक सेक्शन बनाएंगे, प्रोटेक्टेड भी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू. सो दिस इज अ जर्नल सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग अ ड्राइव क्लास. अभी हम प्रोग्राम्स करेंगे तो ये सिंटेक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. So now let us explain what are visibility modes. जो हमने देखा था ना ड्राइव क्लास बनाने के हेडर में हम यूज करते हैं विजिबिलिटी मोड. व्हाट डज दैट मीन. असेस स्पेसिफायर तो आपको क्लियर हो गया ना, तो विजिबिलिटी मोड भी आपको क्लियर हो जाएगा. दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है. सो लेट अस स्टडी व्हाट आर विजिबिलिटी मोड्स. विजिबिलिटी मोड्स की सारी थियोरी समझने से पहले ना लेट मी एक्सप्लेन टू यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. मैं डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ विजिबिलिटी मोड होता क्या है, ठीक है. ओके, नाउ सी. अब इनहेरिटेंस में क्या होता है, बेस क्लास होती है, ड्राइव क्लास होती है. एक बेस क्लास हो सकती है, मोर देन 1 बेस क्लासेस हो सकती हैं, 1 ड्राइव क्लास हो सकती है, मोर देन 1 ड्राइव क्लासेस भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग की इनहेरिटेंस किस टाइप की है ना. ओके, सो कोई भी बेस क्लास है, कोई भी ड्राइव क्लास है. आपको पता है बेस क्लास को लिखने का तरीका, उसकी कोडिंग करने का मेथड इज सिंपल. जैसे हम नॉर्मल क्लास लिखते हैं, क्लास का नेम, देन वी हैव कर्ली ब्रैकेट्स, वी हैव प्राइवेट सेक्शन, वी हैव पब्लिक सेक्शन, और इनहेरिटेंस में हम प्रोटेक्टेड सेक्शन भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं इन द बेस क्लास, ठीक है. देन वी क्रिएट अ ड्राइव क्लास फ्रॉम दिस बेस क्लास. हम इस बेस क्लास की एक ड्राइव क्लास बनाते हैं और सिंटेक्स क्या होता है, क्लास, ड्राइव क्लास नेम, कॉलन, विजिबिलिटी मोड एंड बेस क्लास नेम. Now visibility mode are of 3 types,
पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, सेम जैसे एसेस स्पेसिफायर्स होते हैं, लेकिन एसेस स्पेसिफायर्स का कुछ और पर्पस होता है, विजिबिलिटी मोड्स का कुछ और पर्पस होता है. हाँ, नेम्स सेम है. ठीक है, ओके. अगर हम विजिबिलिटी मोड प्राइवेट लिखते हैं, व्हाट डज दैट मीन? अब अच्छे से समझो. हमें पता है ड्राइव क्लास में बेस क्लास के सारे फीचर्स आ जाते हैं, अभी तक हमने यही पढ़ा, लेकिन अब मैं थोड़ा इसको रिफाइन करूंगी. जो बेस क्लास के प्राइवेट फीचर्स है ना, लाइक प्राइवेट सेक्शन में मैंने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया, पब्लिक में बी किया, प्रोटेक्टेड में सी किया. तो जो प्राइवेट सेक्शन में जो डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस होंगे ना, वो कहीं इनहेरिट नहीं होंगे, वो प्राइवेट होंगे. इस क्लास में ही यूज हो सकता है. ए वेरिएबल इस क्लास में ही असेस हो सकता है. मैं यहां पर लिख सकती हूँ a इक्वल्स टू 5, इधर भी लिख सकती हूँ a इक्वल्स टू 10, यानी क्लास के अंदर मैं ए वेरिएबल को यूज कर सकती हूँ. लेकिन जो भी चीज प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर कर दी है वो इनहेरिट नहीं होगी ड्राइव क्लास में, वो बेस क्लास में ही रहेगी. सो ए वेरिएबल वोंट बी असेस्ड इन ड्राइव क्लास. ठीक है, चाहे कोई भी विजिबिलिटी मोड हो, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो, कोई भी विजिबिलिटी मोड हो, इंडिपेंडेंट ऑफ द विजिबिलिटी मोड, प्राइवेट फीचर्स बेस क्लास के कहीं भी असेस नहीं होंगे ड्राइव क्लास में, कहीं भी असेस नहीं होंगे, ड्राइव क्लास में नहीं जाएंगे. यानी यहां पे मैं लिखूंगी ना a इक्वल्स टू 5, एरर आ जाएगी कि व्हाट इज ए को ए तो नजर ही नहीं आ रहा क्या है, क्योंकि वो बेस क्लास के प्राइवेट सेक्शन में छुपा हुआ है. क्लियर? ओके. इसका मतलब पब्लिक फीचर्स एंड प्रोटेक्टेड फीचर्स इनहेरिट होते हैं. ये हमने असेस स्पेसिफायर्स में समझा था. सी, हमने यहां देखा था कि जो प्राइवेट फीचर्स हैं वो ड्राइव क्लास में नहीं जाते. ये ड्राइव क्लास का कॉलम है. पब्लिक और प्रोटेक्टेड फीचर्स ड्राइव क्लास में इनहेरिट होते हैं. ठीक है, इतना हमें पता लग गया. प्राइवेट फीचर्स, कोई भी विजिबिलिटी मोड हो, प्राइवेट फीचर्स इनहेरिट नहीं होंगे, पब्लिक और प्रोटेक्टेड फीचर्स इनहेरिट होंगे. नाउ द क्वेश्चन इज कहां इनहेरिट होंगे? दैट डिपेंड्स ऑन द विजिबिलिटी मोड. अगर विजिबिलिटी मोड प्राइवेट है तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड फीचर्स दोनों ही बेस ड्राइव क्लास के प्राइवेट सेक्शन में आ जाएंगे, इनहेरिट होंगे. यानी बी भी ड्राइव क्लास का प्राइवेट बन जाएगा और सी भी ड्राइव क्लास का प्राइवेट बन जाएगा. यानी कि अगर हम इस क्लास से फर्दर कोई क्लास ड्राइव करेंगे तो उस क्लास में बी और सी नहीं जाएंगे. क्यों? क्योंकि बी और सी दोनों बेस क्लास के फीचर्स जो हैं ड्राइव क्लास के प्राइवेट सेक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि विजिबिलिटी मोड प्राइवेट है. अगर विजिबिलिटी मोड पब्लिक है तब देखो प्राइवेट सेक्शन फीचर्स असेस होंगे ही नहीं, है तो पता ही है हमें. ठीक है, कोई भी विजिबिलिटी मोड हो, प्राइवेट फीचर्स बेस क्लास के ड्राइव क्लास में आते ही नहीं, सिर्फ पब्लिक और प्रोटेक्टेड आते हैं. विजिबिलिटी मोड हमें यह बताता है कि जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड फीचर्स ड्राइव क्लास में इनहेरिट होते हैं वो कौन से सेक्शन में इनहेरिट होंगे, ये बताता है विजिबिलिटी मोड. सो अगर विजिबिलिटी मोड प्राइवेट है तो याद कर लो पब्लिक फीचर्स एंड प्रोटेक्टेड फीचर्स बेस क्लास के ड्राइव क्लास के प्राइवेट सेक्शन में इनहेरिट होंगे. अगर विजिबिलिटी मोड पब्लिक है तो जौन सा फीचर जौन से सेक्शन में है वो वही सेक्शन में इनहेरिट होगा. अगर पब्लिक फीचर है तो वो ड्राइव क्लास के पब्लिक सेक्शन में इनहेरिट होगा. प्रोटेक्टेड फीचर ड्राइव क्लास के प्रोटेक्टेड सेक्शन में इनहेरिट होगा अगर विजिबिलिटी मोड पब्लिक है. एंड अगर विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड है तब दोनों चीजें प्रोटेक्टेड सेक्शन में असेस होंगी. प्राइवेट फीचर्स तो असेस होंगे ही नहीं, बेस क्लास के ड्राइव क्लास में असेस ही नहीं होंगे, पब्लिक और प्रोटेक्टेड असेस होंगे. सो अगर विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड है तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड फीचर्स कहां असेस होंगे? प्रोटेक्टेड सेक्शन में. सो बहुत सिंपल है. अगर विजिबिलिटी मोड प्राइवेट है तो दोनों फीचर्स प्राइवेट सेक्शन में इनहेरिट होंगे. अगर विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड है तो दोनों फीचर्स प्रोटेक्टेड में असेस होंगे. और अगर विजिबिलिटी मोड पब्लिक है तो जौन सा फीचर जहां है वो वहीं असेस होगा. धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट विजिबिलिटी मोड टेल अस. व्हाट दे टेल? दे टेल कि जो फीचर्स बेस क्लास के ड्राइव क्लास में असेस होने हैं वो ड्राइव क्लास के कौन से सेक्शन में असेस होंगे, ताकि ड्राइव क्लास से फर्दर अगर हम कुछ और ड्राइव करें तो फिर पता लगता है कि कौन से फीचर्स अगली वाली ड्राइव क्लास में जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे. सो हल्का सा आई होप इट इज क्लियर. एक अब ये टेबल देखो, बाद में थियोरी में आते हैं. नाउ सी, ये बेस क्लास के असेस स्पेसिफायर्स हैं, बेस क्लास के असेस स्पेसिफायर्स हैं, ये वाले बेस क्लास के असेस स्पेसिफायर्स हैं ये. ठीक है, ये ड्राइव क्लास के विजिबिलिटी मोड्स हैं, ड्राइव क्लास की विजिबिलिटी मोड्स हैं. दिस वन और प्रोटेक्टेड. सी, अगर विजिबिलिटी मोड प्राइवेट है या पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है, विजिबिलिटी मोड कोई भी है, प्राइवेट है, पब्लिक है
या विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट फीचर्स ने तो इनहेरिट होना ही नहीं, प्राइवेट फीचर्स ने तो इनहेरिट होना ही नहीं ड्राइव क्लास में। सो यही टेबल में लिखा हुआ है, विजिबिलिटी मोड ड्राइव क्लास का कोई भी हो, प्राइवेट फीचर्स ने बेस क्लास के इनहेरिट होना ही नहीं। आई होप इट इज क्लियर। तो किन्हों ने इनहेरिट होना है? पब्लिक फीचर्स और प्रोटेक्टेड फीचर्स ने। अब विजिबिलिटी मोड बताएगा कहाँ इनहेरिट होना है। अगर विजिबिलिटी मोड प्राइवेट है तो हमने क्या स्टडी किया था? अगर विजिबिलिटी मोड प्राइवेट है तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड फीचर्स प्राइवेट सेक्शन में जाते हैं। तो यही टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर विजिबिलिटी मोड प्राइवेट है तो पब्लिक फीचर्स आर इनहेरिटेड इन प्राइवेट सेक्शन ऑफ ड्राइव क्लास एंड प्रोटेक्टेड फीचर्स आर आल्सो इनहेरिटेड इन प्राइवेट सेक्शन ऑफ ड्राइव क्लास, दोनों प्राइवेट में जाएंगे। और अगर विजिबिलिटी मोड पब्लिक है तब हमने क्या स्टडी किया था? तब हमने स्टडी किया था जौन सी चीज यहाँ जौन से सेक्शन में है वो वहीं इनहेरिट होगी। पब्लिक चीजें पब्लिक में इनहेरिट होंगी, चीजें मीन्स फीचर्स, एंड प्रोटेक्टेड फीचर्स प्रोटेक्टेड सेक्शन में इनहेरिट होंगे। सो यही टेबुलर फॉर्म में भी लिखा हुआ है कि अगर विजिबिलिटी मोड पब्लिक है तो पब्लिक प्रॉपर्टीज जो है बेस क्लास की वो पब्लिक सेक्शन में इनहेरिट होंगी ड्राइव क्लास के, और प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज प्रोटेक्टेड सेक्शन में इनहेरिट होंगी ड्राइव क्लास के। एंड अगर विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड है तब हमने क्या स्टडी किया था? तब हमने स्टडी किया था कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों फीचर्स प्रोटेक्टेड सेक्शन में असेस होंगे। तो यही टेबुलर फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड है यानी प्रोटेक्टेडली क्लास इनहेरिट हुई है तो दोनों फीचर्स प्रोटेक्टेड सेक्शन में इनहेरिट होंगे। सो हम इसको कैसे कहते हैं? हम कहते हैं कि ड्राइव क्लास प्राइवेटली बनी है, कि पब्लिकली बनी है, कि प्रोटेक्टेडली बनी है। मीन्स कौन सा विजिबिलिटी मोड है। सो दिस इज व्हाट विजिबिलिटी मोड स्पेसिफाइज टू अस। अब थियोरी पोर्शन करते हैं। सो विजिबिलिटी मोड्स। Visibility mode describes that in which section of drive class will the base class features be assessed. कि drive class के कौन से section में base class के features assess होंगे. So this is explained in the following table. Table I have already explained to you. Now let us read the theory part. The above table can be explained as follows. Case 1. When drive class is privately inherited from base class. यानी अगर visibility mode private है तब आपको पता है, तब पहले syntax लिखना कैसे है? We write class स्मॉल लेटर्स में कीवर्ड है, देन ड्राइव क्लास का नेम, देन कॉलन, देन विजिबिलिटी मोड इज प्राइवेट बिकॉज हम प्राइवेट वाला स्टडी कर रहे हैं, एंड देन बेस क्लास का नेम, एंड देन वी राइट द डेफिनेशन ऑफ द क्लास. सो इन दिस केस व्हाट हैपन्स? इन दिस केस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास वुड नॉट बी इनहेरिटेड इन ड्राइव क्लास. प्राइवेट मेंबर्स तो कभी भी इनहेरिट नहीं होंगे ड्राइव क्लास में, चाहे कोई भी विजिबिलिटी मोड हो. The protected members of the base class would be inherited in private section of the drive class. Similarly, public section members of the base class would be inherited in private section of the drive class. अगर visibility mode private है तो दोनों चीजें private section में आ जाती हैं. Protected भी और public भी features base class के drive class के private section में inherit होते हैं. And अगर हमने visibility mode public की है, means when a class is derived publicly from the base class, तब लिखते ऐसे हैं क्लास, ड्राइव क्लास का नेम, कॉलन, पब्लिक, बेस क्लास का नेम. मीन्स विजिबिलिटी मोड इज पब्लिक नाउ. सो इन दिस केस प्राइवेट फीचर्स तो वी नो इनहेरिट होंगे ही नहीं. प्रोटेक्टेड में जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे. एंड अगर प्रोटेक्टेडली इनहेरिट हुई है ड्राइव क्लास बेस क्लास से, मीन्स विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड है, तो हम ऐसे लिखते हैं क्लास, ड्राइव क्लास का नेम, कॉलन, प्रोटेक्टेड, बेस क्लास का नेम. और यहां पर सेमी कॉलन भी आना चाहिए था क्योंकि क्लास के एंड में C++ में हमेशा सेमी कॉलन आता है. हाँ, जब आप जावा करोगे इन फ्यूचर तो वहां पे आप देखोगे वहां सेमी कॉलन नहीं आता क्लास के एंड में. फाइन. सो अगर प्रोटेक्टेड है विजिबिलिटी मोड तो हमने क्या स्टडी किया था? हमने किया था कि दोनों सेक्शंस का जो फीचर्स हैं वो प्रोटेक्टेड सेक्शन में जाते हैं. सो यही मैंने लिखा हुआ है कि प्राइवेट फीचर्स तो इनहेरिट ही नहीं होंगे, प्रोटेक्टेड फीचर्स भी प्रोटेक्टेड सेक्शन में जाएंगे और पब्लिक फीचर्स भी बेस क्लास के ड्राइव क्लास के प्रोटेक्टेड सेक्शन में ही जाएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक विजिबिलिटी मोड. हल्का सा कंफ्यूजिंग था बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, एफर्ट्स किए हैं कि आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाए विजिबिलिटी मोड का टॉपिक. बेटा किसी बुक में इसको इतनी क्लैरिटी से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ. स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड कि एसएस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, विजिबिलिटी मोड्स क्या होते हैं. बट मैंने बेटा कोशिश किया कि ऐसे नोट्स प्रिपेयर करूं, ऐसे आपको एक्सप्लेन करूं कि बहुत ईजी वे से आपको ये समझ आ जाए. फाइन.
So students, before starting the programs of inheritance, the last theoretical portion is limitations of inheritance. एडवांटेजेस तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ ली. नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस की कुछ छोटी मोटी लिमिटेशंस भी हैं, इतनी मैटर नहीं करती जितने उसके एडवांटेजेस मैटर करते हैं. सो लेट अस स्टडी. इनहेरिटेड फंक्शंस वर्क स्लोअर देन नॉर्मल फंक्शंस. जो फंक्शंस ड्राइव बेस क्लास से ड्राइव क्लास में इनहेरिट हो रहे हैं उनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, बट हमें नहीं पता लगता बीइंग अ यूजर. ठीक है. इम्प्रॉपर यूज ऑफ इनहेरिटेंस में लीड टू रॉन्ग सोल्यूशंस. अगर हमने इनहेरिटेंस गलत कर ली, गलत क्लास को इनहेरिट कर लिया, सो हमारा कंसेप्ट लॉजिक गलत हो सकता है. द डेटा मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास आर ऑफन लेफ्ट अनयूज्ड विच लीड्स टू मेमोरी वेस्टेज. एक बेस क्लास बनी, उसे ड्राइव क्लास बनाई. ड्राइव क्लास में हम डेटा मेंबर्स को यूज कर लेते हैं, हम ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं. बेटा एक बात याद रखनी है, जब प्रोग्राम्स भी मैं करवाऊंगी, कि हम हमेशा ना ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं. हम बेस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बहुत रेयरली बनाते हैं, क्योंकि ड्राइव क्लास में बेस क्लास की प्रॉपर्टीज भी आ गई, प्लस ड्राइव क्लास की अपनी प्रॉपर्टीज भी होती हैं. सो वी ऑलवेज मेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ, या वी ऑलवेज डिक्लेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ड्राइव क्लास ओनली. ए क्लास बेस है, बी ड्राइव्ड है, तो हम बी के ही ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं मोस्टली. इससे क्या होता है, जो बेस क्लास के डेटा मेंबर्स है ना, वो अनयूज्ड रह जाते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्शन में है, उन्होंने ड्राइव क्लास में इनहेरिट नहीं होना. सो वो अनयूज्ड रह जाते हैं, जिसके कारण मेमोरी वेस्टेज होती है. क्लियर हुई है? ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? लेट मी एक्सप्लेन इन मोर डिटेल. बेस क्लास में प्राइवेट सेक्शन में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट ए. जब मैंने ड्राइव क्लास बनाई तो वी नो दैट कि प्राइवेट सेक्शन का जो फीचर है वो बेस क्लास में असेस नहीं, ड्राइव क्लास में असेस नहीं होता. यानी ए जो है वो ड्राइव क्लास में असेस नहीं होगा, क्योंकि वो बेस क्लास के प्राइवेट सेक्शन में पड़ा हुआ है. इसका मतलब हम ए में वैल्यू डाल ही नहीं सकते ड्राइव क्लास में. ऑब्जेक्ट्स तो हम ड्राइव क्लास के बनाते हैं, तो इट मीन्स ए में हम वैल्यू डाल ही नहीं सकते. इट मीन्स ए की जो मेमोरी स्पेस है वो अनयूज्ड है. तो ये लिमिटेशन तो है, बट इसका एक सोल्यूशन भी है जो हम अपने प्रोग्राम्स में भी करने वाले हैं. सोल्यूशन ये है, याद रखना मेरी बात को, और जब मैं प्रोग्राम्स करवाऊंगी तब दोबारा रिपीट करूंगी, बट अभी याद रखना है आपने कि जब भी हम बेस क्लास बनाएंगे ना, whenever I will write the coding of the base class, तब मैं प्राइवेट सेक्शन लूंगी ही नहीं. I won't take private section in the base class. Why? क्योंकि प्राइवेट सेक्शन अगर हमने इनहेरिटेंस करनी है तो प्राइवेट सेक्शन का कोई यूज ही नहीं है, उसने इनहेरिट ही नहीं होना. तो बेस क्लास में मैं हमेशा दो सेक्शंस लूंगी, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक. और ड्राइव क्लास में डिपेंडिंग कि मेरी क्लास ड्राइव क्लास ने फर्दर इनहेरिट करवाना है किसी को कि नहीं, मैं ड्राइव क्लास में प्राइवेट और पब्लिक सेक्शंस लूंगी. बेस क्लास में प्रोटेक्टेड पब्लिक, ड्राइव क्लास में प्राइवेट पब्लिक. और अगर ड्राइव क्लास ने फर्दर बेस बन के फर्दर इनहेरिट करवाना है तब मैं ड्राइव क्लास में प्रोटेक्टेड भी लूंगी. वो हम करेंगे जब प्रोग्राम करेंगे, बट थोड़ा याद रखना आपने इस चीज को. फाइन. ओके. थर्ड, inheritance increases coupling between two classes. This means one cannot be used independently of each other. दोनों क्लासेस इतनी टाइटली कपल्ड हो जाती हैं कि हम इंडिपेंडेंटली एक क्लास या दूसरी क्लास को यूज नहीं कर सकते. मीन्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाती हैं. Inheritance makes the program more complex and hence less readable. कंप्लेक्सिटी बढ़ जाती है. आप इनहेरिटेंस के प्रोग्राम्स देखोगे, हल्का सा तो कंप्लेक्सिटी आएगी ना, बिकॉज मोर देन वन क्लासेस वुड बी देयर. एक क्लास दूसरे को इनहेरिट कर रही है, कोई किसी को इनहेरिट कर रही है, तो हल्की सी कंप्लेक्सिटी होगी और रीडेबिलिटी कम हो जाती है. रीडेबिलिटी मीन्स हमें पढ़ के प्रोग्राम को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. इनहेरिटेंस स्लोज डाउन द एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ द प्रोग्राम. और इनहेरिटेंस जिस क्लास में की हो या जिस प्रोग्राम में इनहेरिटेंस हो, उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड हल्की सी स्लो हो जाती है. So these were all limitations of inheritance. So this was all about the theory portion of the chapter inheritance. Now we will study the programs of this chapter. हमने किया था कि inheritance 5 types की होती है ना, single, multiple, hierarchical, multi-level and hybrid. तो हमने हर एक inheritance का एक प्रोग्राम करना है, then our chapter will be over. Fine?